With this era of internet that everything is available at a touch of a finger, लोगों को आज पिज्ज़ा भी 30 मिनट में चाहिए, ग्रोसरी 10 मिनट में मिल जाती है, हर 10 सेकंड में रील को स्वाइप करते हैं, तो वो एक स्टिमुलस हो चुका है कि हर चीज़ जल्दी होनी चाहिए. So please tell me, you got one of your clients to invest in Camellias at 25,000 rupees a square feet? हमारी कंट्री में इंडिया में हेल्थ इन्फ्लेशन जो है दैट इज इंक्रीजिंग बाय 14.5% पर ईयर, एंड इफ यू टॉक अबाउट एजुकेशन इन्फ्लेशन इट इज ऑलमोस्ट टचिंग द डबल डिजिट. इंडिया में मोर देन 110 ट्रिलियन रुपीज आर देयर इन एफडीज, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल वो एफडीज में पैसा रखा हुआ है, वो पैसा खराब हो रहा है अकाउंट में. जो आज यंगर जनरेशन है, दे ऑल्सो वांट अ बाइट ऑफ रियल एस्टेट. सो दैट इज व्हेन रीट्स केम इनटू पिक्चर, और एज लो एज 10,000 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो. Hello everyone, welcome to Z Fund's Sahi Aasan podcast, a podcast where we talk to people making investments sahi and aasan. Today we have with us Chirag, who left the comfort of a well-paying job and started his real estate venture. And today he is also a successful mutual fund distributor. Chirag, welcome to the Z Fund Sahi Aasan podcast. Hi Manish, thank you for inviting me here. Chirag, you grew up in a tier 2 city and then you started your career in an IT company in Pune. And then you moved to Noida to start a real estate venture, and now you're in Gurgaon, not only running a successful real estate venture, but also running a very successful mutual fund distribution business. Talk us through your story. It's a bit obvious wherein I started off with in my early stages. जब बचपन से ही एक शौक था numbers का, interested था हमेशा numbers में. So एक thought आया कि I should pursue that. So I went into engineering. And engineering के साथ I was amongst the first few जो कि अपने campus में select हुआ था in the very first company जो आई थी. So and that is when I went to Pune, जहाँ पर मैंने IT में काम करा कुछ टाइम. बट हमेशा से ही एक ज़ील था कि कुछ अपना स्टार्ट करना है. एंड उसी के साथ साथ, एंड आई ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक स्पीकिंग. सो एंड ड्यूरिंग माई स्टेंट इन IT, दैट इज़ व्हेन आई थॉट कि इस चीज़ को मुझे आगे अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए. So I quit the job at hand and went to pursue my masters. And post my masters, I came to real estate. And at that point of time, ये समझ में आ रहा था कि दिल्ली NCR की मार्केट काफ़ी अच्छी है, तो सिर्फ इसलिए पुणे से हॉप करके दिल्ली और NCR पहुंच गए थे. So गुड़गांव है, यहाँ everybody is a real estate expert. Why is it that people work with you? So, good question, Manish. So, honestly, not just in Gurgaon, people across the world, they think that like they're real estate experts. So, and that is a good thing. But since I mentioned that this is my passion, so साथ ही साथ जब इसको pursue करने के लिए मैं फील्ड में आया, so not only गुड़गांव but across the world, जितनी भी countries हैं जहाँ पर real estate investments और real estate में लोग invest करते हैं, so I have a fair knowledge about that. So this is what I bring to the table to my investors. So एक point आ जाता है कि investors के साथ हम discussion कर पाते हैं, not only just about गुड़गांव but about every other real estate asset across the world. So that then brought you to a point where they started trusting their financial assets with you. What is it about high achieving people? What is it that you bring to the table that now they are even comfortable sharing their financial portfolio and seek your financial advice? So Manish, ये एक बहुत ही जो फील्ड है रियल एस्टेट एंड फाइनेंशियल वर्ल्ड जो है, ये एक बहुत ट्रस्ट का फैक्टर आ जाता है इसके अंदर. लोगों को, फॉर एग्जांपल, अगर NRIs हैं जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, उनको आज की डेट में एक एडवाइज़र चाहिए जो कि अगर उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना है इन देयर रूट्स, सो एक एडवाइज़र चाहिए जो कि ट्रस्टवर्दी हो, जो उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझे, अंडरस्टैंड करे एंड देन अकॉर्डिंगली कुछ रेकमेंड करे. सो दिस इज़ वेयर आई कम इनटू पिक्चर, एंड आई हैव ऑलवेज बीन ऑफ दैट सॉर्ट कि आई वांट टू गिव पीपल व्हाट दे वांट इंस्टेड ऑफ सेलिंग व्हाट आई वांट. सो हमेशा से ये रहा है कि आप अगर सामने वाले का पेन पॉइंट समझते हो, उनका थॉट प्रोसेस समझते हैं, नॉट ऑफ द डिसीजन मेकर बट ऑफ द एंटायर फैमिली, सो इट मेक्स थिंग्स रियली ईजी. और यही वो चीज़ है, आई थिंक दैट इज़ द एक्स फैक्टर दैट आई ब्रिंग टू द टेबल. और उस वजह से मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं वो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, एंड दे हैव बीन ट्रस्टिंग मी एंड आई हैव बीन वर्किंग विद देम फॉर अ व्हाइल नाउ. So tell me, who are your customers and typically what are their investment goals like? So traditionally what we have seen in real estate, people from age groups of 35 to 60 years, they invest a lot in real estate, and that is when they have a certain corpus, because real estate calls for a huge corpus to invest. Absolutely. Physical asset है और पैसे ज़्यादा लगते हैं. So 35 to 60 years के बीच में traditionally investments रहे हैं लोगों के. So be it for end use, be it for going in for some rental incomes. But lately what we have been seeing is a lot of young generation in their early 20s, they are now inclined towards building wealth. And they have started to reach us out wherein कि हम उनके portfolios को बनाएं और grow करें from day one.
So people who've just passed out, have just started working, they are more intrigued towards investing. बट हैविंग सेड दैट रियल एस्टेट, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में हम लोग रियल एस्टेट उनको रेकमेंड नहीं कर सकते बिकॉज इट कॉल्स फॉर अ ह्यूज कॉपस एज आई मेंशन, प्लस साथ ही साथ जो यंग जनरेशन है उसको डेट ट्रैप में एंटर होने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज वो बहुत लंबा चला जाएगा एंड दे वुड बी स्टक अराउंड विद इन दैट लूप कि एक रियल एस्टेट लिया और उसी के ही पैसे भरते जाने हैं हमने, जैसे EMIs होती हैं. सो दैट इज़ व्हेन आई थॉट ऑफ कि हम फाइनेंशियली सारी चीज़ें अगर कवर कर सकें एंड इफ़ वी आर एबल टू गिव अ बुफे टू ऑल आर इन्वेस्टर्स in order to cater to their needs starting from an early age till the time they retire. So हम सारी चीज़ें cover कर रहे हैं. That is when I thought of adding mutual funds within my portfolio of real estate. And वो needs understand करके young generation को भी हम recommendations देते हैं फिर. But सबसे बड़ा एक challenge आ जाता है कि आज patience बहुत कम है. Right. Because with this era of internet that everything is available at a touch of a finger. लोगों को आज पिज़्ज़ा भी 30 मिनट में चाहिए, लोगों को ग्रोसरी 10 मिनट में मिल जाती है, हर 10 सेकंड में रील को स्वाइप करते हैं. तो वो एक स्टिमुलस हो चुका है कि हर चीज़ जल्दी होनी चाहिए और उस वजह से एक जो पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो एक लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएशन करके देते हैं, बीट म्यूचुअल फंड्स, बीट रियल एस्टेट, इस जनरेशन को देन हैंड होल्ड करके आगे चलाने के लिए एंड इवन द ओल्ड पीपल वेयर एन जो एज ग्रुप 35 से 60 ईयर्स वाली है, सबको एक हैंड होल्ड की ज़रूरत आती है. सो वो हैंड होल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है. एंड साथ ही साथ जब भी हम किसी जनरेशन को असिस्टेंस देते हैं तो उनमें वो पेशेंस डेवलप करना कि पैसा लॉन्ग टर्म में ही बनेगा. राइट. सो उस डेफिनेशन को चेंज करना कि वो जो लॉन्ग टर्म उनके लिए 6 महीना है, वो लॉन्ग टर्म एक्चुअली 6 महीना होता नहीं है, वो 10 साल, 15 साल, 20 साल होता है. राइट. तो उस टाइम के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हो तब वो वेल्थ बनती है. 6 महीने में आप फ्लूक कह सकते हो, लेकिन रेगुलरली आप ट्रेडिंग्स और रिटर्न्स नहीं जनरेट कर सकते. So for financial advice, who are your customers? Are they right now only customers who've bought real estate from you, or is it that you've also been able to tap into a segment which has never bought real estate from you? So both, I would say. Okay. So जो मेरे existing investors हैं, जब मैं उनसे मिलता हूँ, जब उनसे डिस्कशन होता है, तो earlier that used to happen कि सिर्फ हम रियल एस्टेट की बात कर पाते थे. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग रियल एस्टेट भी बहुत एंड में आता था डिस्कशन. वी यूज टू टॉक अबाउट एवरीथिंग विच इज़ गोइंग इन एंड अराउंड द वर्ल्ड, जिस वजह से रियल एस्टेट इम्पैक्ट होगा. तब ये समझ में आया कि एक गैप है फाइनेंशियल लिटरेसी का, कि लोगों को रियल एस्टेट का डिस्कशन तो समझ में आ जाता है बट ये नहीं पता कि उनका जो और फाइनेंसेस हैं वो कैसे मैनेज करें. और 10 लोग हैं उनकी लाइफ में जिनके साथ वो अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं. सो वी वॉन्टेड टू बिकम दैट वन स्टॉप शॉप वेयर इन वी वर एबल टू गाइड आर इन्वेस्टर्स एंड टू एंड, कि वो अपनी फाइनेंशियल जर्नी को प्लान कैसे करें. और वो प्लानिंग के लिए तो मेरे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनसे शुरुआत करी और उनको जब गाइडेंस दी, उनके साथ असिस्टेंस दिया, क्योंकि एक बॉन्ड, एक पर्टिकुलर लेवल का बॉन्ड बना हुआ है कुछ सालों से उनके साथ, और वो जो बॉन्ड बना हुआ है उसी को ही नर्चर करने की बात थी. एंड एक फील गुड फैक्टर आ जाता है लोगों के पास कि जो मेरा काफ़ी टाइम से रियल एस्टेट पोर्टफोलियो हैंडल कर रहा है, अगर वही मेरे दूसरे फाइनेंसेस भी हैंडल करता है, सो मेरे को 10 और लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और अपने इंटरनल फाइनेंसेस शेयर करने की ज़रूरत नहीं है. Now there are a lot of financial products where the underlying is a real estate. We've all heard of REITs. What's your view? Should one invest in actual real estate, or would you also advise investors to look at financial assets where the underlying is backed by a real estate asset? So that depends, Manish, on individual. So what happens is जब एक seasoned investor है, so वो real estate asset को purchase करना चाहता है and he has a certain corpus to invest. बट क्योंकि इंडिया एक एस्पिरेशनल कंट्री है, जो आज यंगर जनरेशन है वो दे ऑल्सो वांट अ बाइट ऑफ रियल एस्टेट. सो दैट इज़ व्हेन रीट्स केम इनटू पिक्चर, और एज लो एज 10,000 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो. सो दोनों अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ें हैं. रीट्स जो है वो पर्टिकुलरली कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करता है, और जब वो कंपनीज उससे रेंटल्स अर्न करती हैं वो आपके साथ उन रेंटल्स में से शेयर करते हैं. राइट. एंड तो इसलिए अगर किसी को इनिशियल स्टार्ट करना है, किसी को रियल एस्टेट का शौक है या टेस्ट है और या टेस्ट करना है, तो वो इसलिए रीट्स भी लेते हैं. एंड जब आपके पास एक अच्छा कॉपस है, देन यू गेट इनटू सॉलिड रियल एस्टेट, बीट अपार्टमेंट्स, बीट लैंड, और बीट अ कमर्शियल शॉप और एन ऑफिस स्पेस. Now there's a fine balance between trust and growing your business, right? At the end of the day, the whole point of the business is that it should grow, it should expand. At the same time, one has to sort of realize that there is an inherent trust when people are trusting you with their money. How do you walk that line? Great question, Manish. सबसे बड़ा factor in any field that we go to is trust. सबसे पहले जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं, जब भी हम किसी से बात करते हैं, सो माई इंटेंट, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, वॉट आई डू इज़ कि मैं सामने वाले को, आई वॉन्ट टू हेयर देम आउट, वॉट आर देयर थाट्स,
एंड व्हाट इज़ इट जो उनको कहीं पिंच कर रहा है कि जिस वजह से वो जो ग्रोथ को देखना चाह रहे हैं वो अचीव नहीं हो रही है, मैं उसको अंडरस्टैंड करता हूँ। और वो अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ रिकमेंडेशंस आते हैं। तो अब आ जाती है ट्रस्ट बिल्ड करने की बात। सबसे बड़ी चीज़ है कि वन हैज़ टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत ज़रूरी है ऑनेस्टली। सो जब भी मैं अपने इन्वेस्टर से बात करता हूँ, चाहे किसी ने मेरे साथ 10 साल पहले भी इन्वेस्ट करा हुआ है, सो आज भी मैं उससे वही बात करूँगा जो 10 साल पहले करी थी, क्योंकि थॉट्स क्लियर थे हमेशा से। और जो चीज़ें याद करने की ज़रूरत होती है, सो उस चीज़ को मैं नर्चर करता हूँ उनसे रिलेशनशिप को ग्रो करने में। फॉर एग्जाम्पल स्पेशल ओकेजन्स ऑफ देयर फैमिली एंड देयर फैमिली मेम्बर्स एंड देयर लव्ड वंस, सो वो चीज़ देखते हैं। सो रिलेशनशिप जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रो इस तरीके से हो जाती है जब आप क्लाइंट को कुछ बेच नहीं रहे हो। आप जब क्लाइंट को समझ रहे हो, उसके साथ डिस्कशन कर रहे हो एंड उनको वो चीज़ देना चाह रहे हो जिससे उनको खुशी मिलती है, सो उससे ड्वेल होती जाती है रिलेशनशिप, और उसी को ग्रो करने की बात है फिर। So please tell me, you got one of your clients to invest in Camellias at 25,000 rupees a square feet? Yes, initially. Tell me about it. So Camellias was launched in 2012-2013. Right. And markets बहुत हेवाए थी, बहुत ज़्यादा पीक पर नहीं थी। सो इन्वेस्टर्स और DLF ने वो प्राइसेस जो हैं, सो इट्स Camellias इज़ बाय DLF, सो DLF ने काफ़ी टाइम तक उस प्राइस को स्टेबल रखा था टू केटर टू दैट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स जो कि अरालियाज मग्नोलियाज से मूव करके Camellias में आ रहे थे। Right. सो एक ये 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का जो प्राइस आया था उस समय 2012-13 में लोगों को बहुत हैवी लगता था। बिकॉज उस समय अगर मैं गोल्फ कोर्स रोड की बात करता हूँ तो जो आज हम गोल्फ कोर्स रोड गुड़गांव में हम देखते हैं वो वैसी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो उस टाइम पर जो गोल्फ कोर्स रोड पे दूसरी प्रॉपर्टीज़ थी उनकी प्राइसिंग हुआ करती थी 15,000 से 16,000 रुपये, एंड दिस वाज ऑलमोस्ट एट डबल द प्राइस। राइट। बट हैविंग सेड दैट, Camellias, Aralias, Magnolias, these properties are not about pricing, it is all about the gentry. राइट। सो जो मेरे इन्वेस्टर हैं जिनको अब ऑब्वियसली वो एंड यूज़र हैं वहाँ पर रह रहे हैं, सो उनको जब ये चीज़ बताई थी तो प्राइस का एक पॉइंट आया था कि ये इतना महंगा क्यों दे रहे हैं। सो एक सिंपल सा डिस्कशन हुआ था कि ये ब्रिक एंड मोर्टार का प्राइस नहीं है सर, ये प्राइस है आपके नेबर्स का। और एक एक्सपीरियंस का, एक एक्सपीरियंस, आपको क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं सोसाइटी के अंदर, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ लिविंग दैट यू गेटिंग। आप एक 7 स्टार लिविंग ले रहे हो विदाउट गोइंग आउटसाइड गुड़गांव। And you got somebody to invest in Camellias at 25,000 rupees. Yes. I'm sure now you're making them invest in stock markets too. Right. With that, we move to the segment Inside My Portfolio. This is where we ask our guest, where do they invest their own money? Why do they do that? And what does money mean to them? So Chirag, how do you handle your own money? What does your portfolio look like? I'm invested in the entire financial world, honestly speaking. Right. So I'm in real estate. I've invested in stock market. I'm into some safer assets, which is bonds and gold as well. Right. So portfolio को ऐसे divide करके रखा हुआ है. So to talk about the numbers, so out of 100, so 40% is into real estate, 40% is into direct equity and mutual funds. Right. And 20% is in debt bonds and gold. Right. So I honestly prefer digital gold over physical gold. Initially backgrounds normally ये रहते हैं कि हम physical gold collect कर लेते हैं, और families में हमारे इंडिया में खास कर ये रहता है कि आपके पास gold jewelry होनी चाहिए, which people talk about as investments, but I don't think those are proper investments, because आप उसको बेचोगे नहीं, because एक emotional attachment हो जाता है उस jewelry से. Right. To cut those emotions off, so मैंने invest करना शुरू करा digital gold के अंदर. Right. एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है डिजिटल गोल्ड, बिकॉज उसमें मेकिंग चार्जेस नहीं लगते आपके। दैन जब आप सेल करने जाते हो तो नॉर्मली एक शॉपकीपर जो है वो आपको प्राइस उसमें से कट करके देता है, जो एक्चुअल प्राइस होता है गोल्ड का उससे भी मेकिंग चार्जेस डिडक्ट करेगा, GST डिडक्ट करेगा, मल्टीपल चीज़ें उसमें से माइनस हो जाती हैं, सो विच ब्रिंग्स डाउन योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू। राइट। एंड वेयर in digital you get 24 कैरेट गोल्ड, और जो भी करंट मार्केट प्राइस है आप उसके ऊपर बाय या सेल कर सकते हो। Your 80% of your portfolio is in growth assets, equity and real estate. Why is that? जब भी इक्विटी की हम बात करते हैं, रियल एस्टेट की हम बात करते हैं, सो लॉन्गर टर्म में ये अच्छे रिटर्न्स देते हैं। एंड टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ पोस्ट रिटायरमेंट, अगर मेरे को एक अच्छी लाइफ जीनी है जिसमें मेरे पास एक अच्छा कॉपस हो, अच्छा पैसा हो, जिससे मैं अपनी लाइफ की वो सारी नीड्स फुलफिल कर सकूं जो मैं करना चाहता हूं, एंड आई लिव अ हैप्पी हेल्दी लाइफ, उस वजह से मैं इक्विटी और रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हूँ। तो अगर मैं इसे सरल भाषा में कहूँ, आपने ऐसी जगह पैसा लगाया जो महंगाई की दर, रेट ऑफ इन्फ्लेशन को बीट करेगा। दैट्स बीन योर एक्सपीरियंस दैट ओवर द ईयर्स द पोर्टफोलियोज substantially delivered what we call real returns, right? Absolutely. Inflation is eating up people's money. बहुत जल्दी ख़त्म करता है पैसे को. So एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जब भी हम बात करते हैं आज हमारी कंट्री में, इंडिया में हेल्थ इन्फ्लेशन जो है that is increasing by 14.5% per year. Right. And if you talk about education inflation, it is almost touching the double digits. So 8.5-9% पर है.
आज हम ठीक है, हम ओवरऑल अगर कंट्री को एज अ होल देखते हैं तो हमारे GDP नंबर्स और हमारा इन्फ्लेशन नंबर 5.5% आता है, बट अर्बन एरियाज़ में वो नहीं है. अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है. सिंपल कैलकुलेशन है, जो भी इन्फ्लेशन है, जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है, विच इज़ अगर मैं एवरेज भी लूँ तो 7.5% का एक्चुअल इन्फ्लेशन आता है अर्बन एरियाज़ में. वो प्लस जो हमारी GDP की ग्रोथ है, अगर मैं उसको ऐड करूँ उससे ज़्यादा रिटर्न्स आने चाहिए. राइट. सो अगर उसका कैलकुलेशन देखें तो 7.5 और GDP ग्रोथ हमारी 4.5% 5.5% से चल रही है, तो 11-12% का एक कवर होता है. तो उससे ऊपर जो भी रिटर्न्स आते हैं ये सॉर्टेड. So as long as the portfolio is delivering more than the nominal growth rate of the GDP, you are happy with your portfolio. Absolutely. What does money mean to you then? What does this portfolio mean to you? Is it a source of confidence? Is it a safety net? Is it risk capital for your business? What does this portfolio mean to you? Honestly speaking, this is more of internal satisfaction. मेरे को बहुत किक मिलती है जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ. जब भी वो पैसा डेबिट होता है ना अकाउंट से, चाहे मैंने कुछ परचेज करा है, कुछ इन्वेस्टमेंट करा है, या गोल्ड में करा है, या रियल एस्टेट में करा है, तो वो कुछ बबल्स निकलते हैं ना अच्छे वाले, हैप्पी स्माइलीज, वो निकलना शुरू हो जाते हैं कि यार आई हैव डन समथिंग गुड. नहीं तो वो पैसा खर्च हो जाता है मनीष. वो नॉर्मली क्या रहता है कि आप जब उसको खर्च कर दोगे वो ख़त्म है. आप 1 दिन 2 दिन की खुशी है, उसके बाद डेड हो जाता है. बट ये जो एक किक आता है, एक फील आता है टू इन्वेस्ट योर मनी, और एंड व्हेन यू सी दैट ग्रो, तो एक वो विजन देखने लग जाता है दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक. द एड्रेनलिन रश दैट यू गेट विद इन्वेस्टिंग. And for me specifically, that's something which is a kicker. That's fantastic. Moving on, how important is liquidity for not only high net worth individuals but all investors? Manish, to answer that question, liquidity is something जो आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, चाहे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो, चाहे नॉर्मल पीपल हो जस्ट स्टार्टिंग ऑफ. बिकॉज यू नेवर नो कब किस टाइम पर कैसी रिक्वायरमेंट आ जाती है फंड्स की. एंड इफ़ यू आर इन्वेस्टेड इन इलिक्विड एसेट्स, तो आप उसको 1-2 दिन में लिक्विडेट करके पैसा नहीं निकाल सकते नॉर्मल. ये बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है. सो स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट HNIs, उनका एक सर्टन लाइफ स्टाइल है जो वो मेनटेन करके चलते हैं. टू मेनटेन दैट लाइफ स्टाइल, वो लिक्विडिटी एक पॉइंट है जो कि उनको हमेशा चाहिए रहती है. So to maintain that liquidity, they tend to invest in liquid funds and other fixed income investments. Right. Now, there are times when the markets are really volatile. What do you do then? How do you make sure that the clients stay calm and stick to the plan that you've charted out for them? Honestly speaking, इस stage पे I am the contra fund of investing. So मैं सबसे ज़्यादा इंटरेक्शंस बढ़ा देता हूँ क्लाइंट्स के साथ. Right. जब भी अगर मार्केट डाउन है, डिप हो रही है, टाइम ख़राब है, उनको एक हैंड होल्डिंग चाहिए, उनको एक सपोर्ट चाहिए कि हाँ मैं सही रास्ते पर हूँ. बिकॉज ये जो फेजेस आते हैं जब भी मार्केट डाउन होती है, सो ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं. कुछ चल जाते हैं साल, 2 साल, 3 साल. बट अगर किसी का विजन 10 साल, 15 साल, 20 साल का है, तो उनको ये छोटे हिकअप से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. बट क्योंकि माहौल ऐसा हो जाता है उनके इर्द गिर्द, वो किसी से मिल रहे हैं, सब यही बात कर रहे हैं, मार्केट ख़राब है, इसमें कुछ पैसा नहीं बनता, मेरे पैसे ख़राब हो गए. सो दैट इज़ वेयर एक उनको सपोर्ट देना, एक उनको कंफर्ट देना, वो कंफर्ट के साथ साथ चलते जाते हैं. और उन इंटरेक्शंस में हम बस ये गाइड करते हैं लोगों को कि जस्ट स्टे पुट, स्टे काम, दिस फेज विल पास. और उस समय हम रेकमेंड करते हैं कि आप डबल डाउन कर दो अपने इन्वेस्टमेंट्स को. And even if clients are not comfortable with doubling down, you tell them stay the course. No action is also action, right? Yes, actually, absolutely right. Now let's do some case studies. Think of an investor who's 25 years old. What would be your advice to her? What kind of mutual fund investments she should be making? So Manish, you're 25-year-old, most probably initially अभी बस स्टार्ट करा होगा उन्होंने काम करना. So basics clear होने चाहिए. So the first thing is what I recommend is कि आपके पास एक प्रॉपर एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए. Right. विच इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. Right. आपके पास एक टर्म प्लान होना बहुत ज़रूरी है. एंड आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है. इमरजेंसी फंड कैन बी अ 6 month रनवे और अ 12 month रनवे, जो आपके एक्सपेंसेस हैं, रेगुलर एक्सपेंसेस हैं. वाई आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दीज 3 इज़, अगर आज आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, बिकॉज इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर मिडिल क्लास इज़ वन हेल्थ इमरजेंसी अवे फ्रॉम बैंकरप्सी. राइट. ठीक है. आज अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, आपने डे 1 से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरीके के आपने इन्वेस्टमेंट्स में पैसा डालना शुरू कर दिया, आपने 3-4 साल 5 साल तक अच्छा पैसा डाल के 5-6 लाख रुपए आपने उसमें ऐड भी कर दिया अपनी एज के हिसाब से. एक हेल्थ इमरजेंसी आ गई, वो सारा ड्रेन आउट हो जाएगा पैसा. देन यू आर बैक टू स्क्वायर वन. आपने अपनी कंपाउंडिंग को ब्रेक कर दिया, आपका वो पैसा भी नहीं बना, और आप साथ ही साथ उस पैसे को ख़त्म करके आपने अपनी लाइफ के 3-4 साल गवा दिए. राइट. सो डे 1 पर जब आप ये तीनों चीज़ों को कवर रखते हो, दैट मीन्स यू आर कंप्लीटली सॉर्टेड इन द सेंस कि अगर कोई कैलामिटी आती है, कोई इशूज आते हैं, देन देर आर कंपनीज हू आर टेकिंग केयर ऑफ इट. Right. So a decent health insurance is of utmost importance. Term plan specifically to people जिसके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है.
फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स की डिपेंडेंसी या किसी की भी डिपेंडेंसी ज़्यादा है तो टर्म प्लान बहुत ज़रूरी है. एंड देन पोस्ट दिस जब ये तीनों चीज़ें कवर हो जाती हैं देन आई रेकमेंड कि अब आप अपने जो कॉपस है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये आप कमा रहे हो तो 100 रुपये का हम बाइफिकेशन बना देते हैं. सो व्हाट यू शुड डू इज़ कि 40% पैसा जो आप अपनी नीड्स में खर्च करो. आपके रेंटल्स हैं, आपकी ग्रोसरी है, आपका ट्रैवल है, एक्सपेंसेस हैं, फ्यूल एक्सपेंसेस, कैब्स एक्सपेंसेस, ये सारे रहते हैं. आप 40% में उसे कवर करो. स्पेंड द नेक्स्ट 20% ऑन योर वॉन्ट्स, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. जब भी आप नॉर्मली जॉब शुरुआत करते हो तो सबसे पहले ये होता है कि मेरे को एक नया फ़ोन लेना है या मेरे को बाइक लेनी है, बहुत ज़्यादा वो शौक होता है. सो हैविंग सेड दैट आप एक डेट ट्रैप में मत चले जाओ कि आप हर चीज़ EMI पे ले रहे हो. आपकी सैलरी कम है बट आप अपने सैलरी से 3-4 गुना ज़्यादा का एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो बिकॉज बाय नाउ पे लेटर का कॉन्सेप्ट चल पड़ा है. सो उस चीज़ को अवॉइड करो. वो सेंस नहीं बनाता क्योंकि अगेन आप एक डेट ट्रैप में आ गए हो. आप सिर्फ उसकी EMI ही फर्निश करते जा रहे हो एंड एक EMI मिस हुई तो 18 से 20% का इंटरेस्ट लगता है उस पर. सिबिल स्कोर अलग खराब हो जाता है. सिबिल स्कोर अलग खराब हो जाता है. फ़ायदा क्या है उस चीज़ का? सो वो 20% पैसा वॉन्ट्स के लिए आप रखो. उसमें आपने शॉपिंग करनी है, उसके अंदर आपने मूवी देखनी है, आपको नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन लेने हैं, बाहर खाने जाना है, जोमेटो स्विगी करना है, आपको जो करना है आप करो. आपका 60% यहाँ कवर हो जाता है. अब बचता है जो मेजर 40% पैसा है. इन्वेस्ट 15% ऑन अपस्किलिंग योरसेल्फ इज़ व्हाट आई रिकमेंड. नॉर्मली लोग कहते हैं कि हम सीधे डे 1 से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं. सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इज़ ऑन वन सेल्फ. अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, अपनी स्किल्स को एनहांस करोगे तो ज़्यादा पैसा बना पाओगे. एक्टिव इनकम जितनी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपकी इवेंचुअल इनकम बढ़ेगी. तो एक्टिव इनकम पे फोकस करो और वो इस फास्ट पेस वर्ल्ड के अंदर आपको अपने आप को अपस्किल करना बहुत ज़रूरी है. आज IT में हर 6-7 महीने में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है. आपने अगर अप टू डेट नहीं रखा तो आप तो वो किताब बन के रख जाओगे जिस पे धूल लगी हुई बाद में फिक जाएगी बाहर. यू आर रिप्लेसेबल. कोई आपको रिप्लेस करके आगे बढ़ जाएगा. सो 15% स्पेंड ऑन योर सेल्फ. कुछ भी हो, आपको पैशन के लिए कुछ सीखना हो, किसी भी चीज़ में किसी भी डायरेक्शन में जाना हो. Balance 25% that goes for your investments and start off small क्योंकि आपके सैलरीज बहुत ज़्यादा नहीं होंगी उस समय. सो आप छोटा छोटा शुरू करो. म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करो, उसकी भी बकेट्स बनाओ. अगर आपके कोई शॉर्ट टर्म नीड्स हैं, शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है 2-4-5 महीने नहीं है, शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है 3-4 साल 5 साल की नीड्स हैं, तो आप उसके लिए एक बकेट बना के चलो. और एक बकेट आप बना के चलो जो आपकी लॉन्ग टर्म विजन है कि आपने एक वेल्थ क्रिएट करनी है, कॉपर्स अच्छा इकट्ठा करना है, ताकि अगर बीच में कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आते हैं सो यू आर लिक्विडेटिंग अ शॉर्ट टर्म वाला जो फंड है. यू आर नॉट टचिंग अ लॉन्ग टर्म फंड. सो दिस इज व्हाट आई रेकमेंड टू द यंगर जनरेशन. So for 3 to 5 years, which category of mutual funds would you recommend? Recommendations would be to go in for large caps or flexi caps. And the investor's risk appetite? A risk appetite is of utmost importance because normally जब हम जॉब शुरू करते हैं तो एक बैकग्राउंड आता है कि जो पेरेंट्स भी बात करते हैं कि FD में पैसा लगा लो, FD करके रख लो. स्टिल आज इंडिया में more than 110 ट्रिलियन रुपीज़ आर देयर इन FDs जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं बट स्टिल वो FDs में पैसा रखा हुआ है. वो पैसा ख़राब हो रहा है अकाउंट में, वो बढ़ता हुआ दिख जाता है 1 साल के एंड में बट इवेंचुअली वो उसकी परचेजिंग पावर ख़त्म हो रही है. So for a 15-20 year horizon, you would say a 25-year-old should be open to the idea of or should ideally invest in a combination of mid-cap, small-cap mutual funds? Yes, small caps and mid caps are good for a longer duration. Anything which is 10 years and plus, mid and small cap are a good bet to go for. Moving on, I'm 35 years old. Tell me, how should I go about doing my mutual fund investments? So 35 years old, आप like you would be in a phase wherein आपकी सैलरी ठीक ठाक होगी एंड आप एक स्टेज पे आ चुके होंगे जहाँ पर आप या तो शादी कर चुके होंगे या करने वाले होंगे और आपकी एक फैमिली लाइफ इंक्रीज़ हो रही होगी. उसमें माइट बी किड्स ऑल्सो वुड बी देयर. सो आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ और बढ़ जाती हैं आपके. तो उस चीज़ को केटर करने के लिए वी डिवाइस प्लान्स अकॉर्डिंगली. हम पोर्टफोलियोज़ वैसे बनाते हैं कंसिडरिंग कि आपके पहले वाले 3 चीज़ें कवर्ड हैं, हेल्थ, टर्म एंड इमरजेंसी फंड्स. अब आप जो अपना इन्वेस्टमेंट्स को देख रहे हो सो अगेन एंड यू ऑल्सो स्टार्ट टू थिंक अबाउट योर रिटायरमेंट, तो उसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट्स को ऐड करना शुरू कर देते हो. कमिंग बैक टू द सेम सिनेरियो कि आपकी जब सैलरीज हैं तो आप 40% अपना सेम अपनी नीड्स के लिए रख रहे हो. अब जो आपकी वॉन्ट्स हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा कवर होने लग जाते हैं टुवर्ड्स योर फैमिली, वो वहाँ ज़्यादा जाने लग जाता है. सो रिड्यूस दैट 20% टू अ 15 और अ 10% नंबर. उसको आप धीरे धीरे ग्रो करो बिकॉज लाइबिलिटीज़ और कवर करनी है आपने. इन्वेस्टमेंट्स को आप और इंक्रीज़ करके चलते जाओ. आप ये जो 5 और 10% उसमें से वॉन्ट्स में से रिड्यूस कर रहे हो, आप उसको ऐड कर दो अपने इन्वेस्टमेंट कॉर्पस में. एंड जो आपका अपस्किलिंग वाला 15% था आप उसको भी रिड्यूस कर सकते हो 10% पे. बट स्टिल स्पेंड डिसेंट मनी और डिसेंट कॉर्पस ऑन योर अपस्किलिंग पार्ट. तो अब आपका जो कॉर्पस था वो 45-50% के आसपास हो जाता है जो आप इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हो. अब उसके अंदर भी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म बकेट्स पे हम काम कर सकते हैं. तो शॉर्ट टर्म वुड बी कि कोई एक फैमिली के साथ वेकेशन प्लान करना है तो वो शॉर्ट टर्म गोल के अंदर आ जाएगा. मीडियम टर्म के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई गाड़ी खरीदनी है
या घर परचेज करना है तो उसकी डाउन पेमेंट करनी है, बिकॉज आप इनिशियली उतना पैसा नहीं इकट्ठा कर पाते कि आप बहुत बड़ा घर खरीद सको. एक वो इमोशनल क्वेश्चन आ जाता है. डाउन पेमेंट का पैसा इकट्ठा करने के लिए हो जाता है. फिर एक लॉन्ग टर्म गोल है. लॉन्ग टर्म गोल में माइट बी किड्स एजुकेशन, किड्स मैरिज, योर रिटायरमेंट, उसके लिए एक अलग बकेट चलती है. सो अगेन बाइफर्केटिंग दैट, उसको आप इनिशियली जो है 5 साल के अंदर का जो टेन्योर है, कीप इट इन लार्ज और फ्लेक्सी कैप. अगर 5 से 10 साल का टेन्योर है, समवॉट लार्ज और मिड कैप का कॉम्बिनेशन, और साथ ही साथ मल्टी कैप आप रख सकते हो. 10 years and beyond, mid and small cap, you can go all out. I'm 50 now. What do I do? बहुत ज़्यादा पास आ जाते हो आप अपने रिटायरमेंट के, और उस समय हम रेकमेंड करते हैं कि आप अपने इक्विटी एक्सपोजर को थोड़ा कम करते जाओ. Right. So we follow this strategy कि 100 minus X, where X is your age, हम उसको कवर करते हुए चलते हैं. आपका उतना एक्सपोजर इक्विटी में होना चाहिए. Right. फॉर एग्जाम्पल यूर 50, तो 50% आपका इक्विटी में होना चाहिए इन्वेस्टमेंट. Okay. कीपिंग असाइड ऑल द अदर एसेट्स जो हमने इन्वेस्टमेंट्स जो हमने सोच लिए अलग, जो कि नीड्स और वांट्स है. बट हम स्पेसिफिकली अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 50% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टेबल कॉर्पस आप रखो इक्विटी में, 50% को आप रखो डेट में, गोल्ड में. इस तरीके से आप इन्वेस्ट करके चलते रहो, जो कि आपको एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम दे सके वंस यू प्लान टू रिटायर, और एक हेज दे सके. क्योंकि वंस जब आप उस स्टेज को क्रॉस कर जाते हो जब आप अर्न नहीं कर रहे हो, सो ये वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है. और शायद वो हो भी ना प्रॉब्लम, बट एक अंदर ये लगने लग जाता है कि यार मार्केट डाउन हो गई है तो अब मेरा पैसा ख़त्म ना हो जाए, बिकॉज मेरा अर्निंग सोर्स ख़त्म हो चुका है. सो इसलिए उसको हेज करके चलना बहुत ज़रूरी है. So that was mutual funds and financial assets. But let me come back to real estate. Let's say I have a corpus of 5 CR. How should I build a real estate portfolio with this? So that would depend a lot on which city you are in India. So we are in Gurgaon, so tell me about Gurgaon. चलो गुड़गांव की बात करते हैं. So गुड़गांव में अगर आपके पास 5 crores का कॉपस है, so what a normal recommendation would be कि आज स्पेसिफिकली गुड़गांव के अंदर 1800-1900 स्क्वायर फीट का एक ठीक ठाक डिसेंट अपार्टमेंट आ जाता है, इफ़ दैट इज़ फॉर योर एंड यूज़. सो 2 सिनेरियोज इसमें भी बन जाते हैं, एक एंड यूज़ का, एक इन्वेस्टमेंट का. सो स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट अगर ये एंड यूज़ का सिनेरियो है, सो अगर किसी के पास 5 crores का कॉपस है, माई रिकमेंडेशन वुड बी टू स्पेंड 3.5 crores के आसपास आप स्पेंड करो अपना घर परचेज करने में, विच वुड गेट यू अ डिसेंट 3-bedroom अपार्टमेंट. This is for an end use. For an end use, yes. Right. A decent 3-bedroom अपार्टमेंट इन गुड़गांव आपके पास वो आ जाता है. आपको उसके ऊपर ओवर एंड अबव, हम नॉर्मली बात करते हैं कि सिर्फ ये 3.5 crore रुपए लगा दिया और वी आर सॉर्टेड. इट्स नॉट अबाउट दैट. सो उसके ऊपर आपके टैक्सेस आ जाते हैं, रजिस्ट्रीज आ जाती हैं. आप जब अपने घर में मूव करते हो तो यू हैव सेंटिमेंट्स विद दैट. आप उसमें इंटीरियर करते हो, कीप एक्स्ट्रा 50 फॉर दैट. सो 4 crore आपने वहाँ इन्वेस्ट कर दिया अपने घर के ऊपर. Right. आपके पास 1 crore रुपए अभी भी बचा हुआ है. Right. अब उस 1 crore को आप इन्वेस्ट करो आइदर इन अ कमर्शियल एसेट दैट गिव्स यू फिक्स्ड रेंटल इनकम. सो जस्ट बिकॉज यू ओन अ हाउस दैट डजंट मीन कि कोई रेकरिंग एक्सपेंसेस नहीं है. आपके सोसाइटी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आ जाते हैं, डेली एक्सपेंसेस चलते रहते हैं, तो उसको केटर करने के लिए वो आप 1 crore अलग रखो जिसकी रेंटल इनकम से आप इसको कवर कर सको. राइट. सो यू आर सेइंग इफ आई हैव 5 crores, 3.5-4 crore रेजिडेंशियल एंड यूज़ में लगा लूँ और 1 crore का एक कमर्शियल रियल एस्टेट कहीं ले लूँ, ताकि उससे जो मेरे को रेंटल यील्ड आए उससे मेरे RWA का जो सिंकिंग फंड बन रहा है उसके पैसे लग जाएं. करेक्ट. कमिंग टू द अदर सिनेरियो विच इज़, अगर ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट का पैसा है, अगर 5 crore आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, देन डोंट गेट इनटू अपार्टमेंट. स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट गुड़गांव, तो आज गुड़गांव के अपार्टमेंट्स जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ अप्रिसिएशन अब वो स्लो ग्रोथ आएगी. एक टाइम था 2020 से 2024 का, व्हेन अपार्टमेंट्स एंड लैंड प्राइसेस वेंट 3-fold 4-fold. बट अब वो स्टेज नहीं आती है, लोगों को लगता है कभी ख़त्म नहीं होगा. तो अब ये उस एक स्टेबिलिटी वाले फेज पे चलेगा. एंड अ 10-11-12% रिटर्न इज व्हाट वन कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ रियल एस्टेट. सो रिकमेंडेशन वुड बी टू इन्वेस्ट दैट कॉर्पस इनटू कमर्शियल एसेट्स. ऑफिस स्पेस आप ले लो या कमर्शियल शॉप ले लो, दैट अगेन जनरेट्स रेंटल यील्ड फॉर यू. राइट. एंड कंसिडरिंग कि वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट और आपके पास आपका घर ऑलरेडी है. So a lot of clients, once they've made money, are now thinking हमारे बाद क्या, ये बच्चों के पास कैसे जाएगा, which is now they are thinking of their legacy, they are thinking of succession. How do you help them with that? सो मनीष, जब लोग एक अच्छा कॉर्पस बना लेते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से हो या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से हो या स्टॉक से हो, कहीं से भी हो, एक अच्छा कॉर्पस जब बन जाता है, या उनकी बिजनेस इनकम ही क्यों ना हो, सो अ लॉट ऑफ आर HNIs दे फील कि अब पीछे हमारी जो कमिंग जनरेशन है उनके पास एक बैंडविड्थ होनी चाहिए टू स्प्रेड मोर और ग्रो कर सकें और वो नाम बन सके. सो लेगेसी इज़ नॉट अबाउट सिर्फ पैसा, इट इज़ अबाउट दैट नेम जो वो चलता जाना है आगे. सो what do we recommend to the investors is कि आज अगर आपके पास एक एक्स अमाउंट बन गया है तो टू रन दैट, और अगर आपकी जो बची हुई लाइफ है जो आपने अभी जीनी है, उस पैसे को आप यूटिलाइज करते हो सिस्टमैटिकली विड्रॉल कर करके, विच इज़ वन. बट
इन द सेम गो आप उसको कंपाउंड होने भी दे रहे हो उस पैसे को, क्योंकि आपका एक अच्छा कॉपस बन गया। और वो अच्छा कॉपस जो है जब इन्वेस्टेड है सही तरीके से, फॉर एग्जांपल 10-11% के रिटर्न पे इन्वेस्टेड है और आप उसमें से 5 या 6% निकाल रहे हो पैसा साल का, सो फिर भी 4-5%, 6% की ग्रोथ आपको दे रहा है ओवर द लॉन्गर टेन्योर। तो अगर आपने आप सपोजिटली 60 साल की उम्र में रिटायर हो गए हो एंड यू हैव अ रनवे टिल 90 हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, सो 30 साल के लिए आपने उस पैसे से अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करा, उसको ग्रो करा। राइट। साथ ही साथ आप अपने बच्चों को अब उसमें इन्वॉल्व करते जा रहे हो कि दैट दे शुड लुक एट कि अब इसको कैसे आगे ग्रो करना है। आपने वो कॉपस तो बना दिया है, उस कॉपस को आगे बढ़ाना कैसे। तो एक तो हो गया कि आपने सिस्टमैटिकली विड्रॉ करके अपने एक्सपेंसेस को केटर कर लिया, जो पैसा वो कंपाउंड हो रहा है अलग लेवल पर, सो दैट कैन बिकम ह्यूज विद इन दिस टेन्योर ऑफ 25-30 ईयर्स। वो जो पैसा है दैट गिव्स अ बिग किक स्टार्ट टू द यंगर जनरेशन कि वो अपना कुछ कर सकें। एंड ऑल दीज HNIs दे थिंक अबाउट, नॉर्मली व्हाट दे थिंक अबाउट इज एंड व्हाट वी हैव बीन सीइंग इज कि वो बिजनेस लेगेसी को ग्रो करें। Right. So what you're telling me is this is when they start involving their children in the decision-making process of how the investments should be structured, how they should be realigned. So children are now part of those conversations. They are part of the decision-making process. Yes, they are. And honestly speaking, we have been seeing this lately कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं आज उनके बच्चे अगर 2-3 साल 4 साल के भी हैं तो वो उनके नाम से भी इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर देते हैं कि टिल द टाइम दे टर्न 18-20, जब उनकी ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, पोस्ट ग्रेड की रिक्वायरमेंट है, या उनके अगर और भी एक्सपेंसेस हैं तो वो केटर हो सकें। भले ही उनके पास एक अच्छा कॉपस है, दे विल बी एबल टू मैनेज दैट, बट 18-20 साल इज़ अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन एंड नो वन नोज क्या हो उस समय। सो वो उस चीज़ के लिए भी कॉपस रेडी करना शुरू कर देते हैं। एंड वो बकेट्स और वो गोल्स जब डिसाइड हो जाते हैं तो उसके हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट्स भी रेकमेंड करते हैं कि आप इस तरीके से चलाओ, सो दैट योर किड इज़ एबल टू केटर टू दोज नीड्स जो कि है। बिकॉज आज जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि इंडिया एक एस्पायरिंग कंट्री है, तो लोगों को होता है कि यहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पर बहुत हैवी फीस है वहाँ भेजना है या फिर अब्रॉड भेजना है, कॉल्स फॉर अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन इन्वेस्टमेंट, और फिर उसके बाद लिविंग एक्सपेंसेस अलग हैं। राइट, राइट। सो उस चीज़ को केटर करने के लिए दे स्टार्ट टू इन्वेस्ट फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। और जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको दिखता है कि हमारे पेरेंट्स ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉपस इकट्ठा करके रखा हुआ है, दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर द स्टडीज़। So do some sums for me. Explain this to me with some numbers. ठीक है, सो व्हाट वील डू इज़ कि हम एक बहुत अल्ट्रा HNI सेगमेंट पे नहीं जाते, वील केटर टू कि आज एक 35 ईयर ओल्ड है एंड मिड स्टेज में है अपने वर्किंग करियर के एंड डिसेंट सैलरी अर्न कर रहा है। सो आज वो उसके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस है 1 लाख रुपए का महीने का एंड इज़ प्लानिंग टू रिटायर एट द एज ऑफ 60। 25 साल के लिए अगर एक इन्वेस्टर लाख रुपए महीना इन्वेस्ट करता है एंड अगर मैं जो नॉर्मल सेबी के जो रिटर्न्स निकल कर आते हैं विच इज़ 12.66%, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर कैलकुलेशन हम अगर 13% CAGR पे भी लेकर चलते हैं तो ये एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स क्लोज टू 20 करोड़ का कॉपस बन जाता है। राइट, ठीक है। आज अगर उनका एक्सपेंस करेंटली स्पीकिंग इज 1.5 लाख रुपए महीना, 20 साल बाद 25 साल बाद सेम एक्सपेंस तो होगा नहीं, इन्फ्लेशन इतना खा जाएगा, सेम 1.5 लाख वुड टर्न टू 8.5 लाख, कैलकुलेटिंग इट एट 7.5% ऑफ इन्फ्लेशन, जो हम एवरेज बात कर रहे थे। राइट। तो 8.5 लाख रुपए महीने का एक्सपेंस होगा उनका 60 साल की उम्र में जाके। करेक्ट। उनके पास 20 करोड़ का कॉपस है। राइट। अगर हम उसमें से सिस्टमैटिक विड्रॉल्स भी करना शुरू करें टू द ट्यून ऑफ 5 और 6%, अगर 6% भी है दैट कम्स टू 10 लाख रुपीज़ अ मंथ नॉर्मल सिनेरियो में। हम 8.5 लाख रुपए महीना विड्रॉ करते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है उसको हम इन्वेस्टेड रहने देते हैं इन बैलेंस फंड्स, नॉर्मल चल रहा है वो। ठीक है। एंड अगेन मेंशनिंग दैट रनवे ऑफ 85 to 90 ईयर्स ऑफ एज, तो 25 से 30 साल उनके पास और रनवे है चलने के लिए। यू वोंट बिलीव मनीष, ये जो कॉपस है जो 20 करोड़ रुपए था, आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये जो 8.5 लाख रुपए महीना यूज़ कर रहे हैं, मोटा मोटा 1 करोड़ रुपए साल का यूज़ हो रहा है उसमें, अगले 25 से 30 साल में इन्फ्लेशन को भी और मैं ऐड कर दूं तो क्लोज टू 35 करोड़ रुपए तो खर्च कर देंगे। बिल्कुल। 20 करोड़ में से 35 करोड़ तो खर्च कर दिया, कितना पैसा बचेगा अब उनके पास? Unless the 20 crore grows to a number that covers this 35 crores, they are in trouble. एंड मनीष, यू विल बी शॉक टू नो कि ये जो 20 करोड़ है आपने 35 करोड़ निकाल लिए, उसके बाद भी एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स ये कॉपस 150 करोड़ का बन जाएगा। Power of compounding, I guess. पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इसलिए एक नॉर्मल सा सिनेरियो है कि कंपाउंडिंग को हम 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। एंड माइंड मी, जो ये सिस्टमैटिक विड्रॉल है ना, इट विल सून बी कॉइंड एज द 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। Let's hope so. Right, moving on to our next segment, which is Business Side Up. This is where we talk about what Chirag's business is all about. How does he help his investors and what's his secret sauce? Right, Chirag, what are your goals for your business? Where do you see yourself 5 years from now? मनीष, जिस फील्ड में हम हैं 5 years इज़ टू शॉर्ट अ पीरियड, ये भी कंपाउंड होने देते हैं थोड़ा धीरे धीरे। सो लेट्स टॉक अबाउट 10 से 15 साल का टेन्योर।
Let's talk then 15, not 10, since we are talking compounding. Yes, so compounding को ज़रा kick in होने देते हैं इसमें. Sure. So our intent is कि first we are able to spread the financial literacy part in our country, which is way too less, way too low. बहुत कम है financial literacy. लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से आगे पैसे को invest करना है और उसको grow करना है. और पहली चीज़, and we want to reach out to maximum number of people in that respect. So coming to the business part, specifically talking about the business part, so I want to serve 3,000 families, and so that they're able to trust me with their money, and I want to empower them कि वो भी बहुत पैसा बना सकते हैं. Right. And इन numbers को भी अगर मैं break down करूँ तो normally लोग बात करते हैं कि करोड़पति बनना है सबने, but मैं थोड़ा सा अलग उससे चलने की बात करता हूँ. तो पहले आप हज़ारपति से लखपति बनो, हमें कुछ हज़ारपति को लखपति बनाना है, Right. लखपति को करोड़पति बनाना है, और जो करोड़पति है उसे अरबपति बनाना है. सो द ब्रेकडाउन इज़ कि 1000 करोड़पति बना सकें और 500 HNIs को अल्ट्रा HNIs की कैटेगरी में डाल सकें, is what our main goal is. Right, fantastic. So what's your most underrated skill? What is it, that one thing that you think will really help you execute this vision that you have? मनीष, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो एक बहुत अंडररेटेड स्किल है द सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स. Right. लोग हर चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. उनको ये लगता है जब बड़े बड़े जार्गन्स किसी के सामने जाकर बोलेंगे तब वो सामने वाला आपके ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करेगा या आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेगा. आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट इट. आप जितना सिंपल तरीके से सामने वाले को बता सकते हो कि किस तरीके से आपका पैसा ग्रो हो सकता है, उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा वो उनके लिए भी और आपकी बिजनेस ग्रोथ के लिए भी. आप हैवी जार्गन से उनको तो कंफ्यूज कर दोगे और वो हमेशा इस कंफ्यूजन में रह जाएंगे कि यार ये कुछ तो बहुत बड़ा कर रहा है. सो यू डू नॉट नीड टू अपसेल योर सेल्फ कि हम कुछ बड़े जार्गन्स बोल रहे हैं तो उस वजह से अपसेलिंग हो रही है. सिंपल रखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो, और ये बहुत अंडररेटेड स्किल है. So simplicity is the key. Simplicity is the key. But we are talking 3,000 families now. That's serious scale. Do you think you'll be able to do it alone, or do you think you'll need a set of people, you'll need a set of partners to help you achieve that goal? मनीष, हमने आज तक नहीं सुना कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल आदमी की बनी हुई हो. तो एक बहुत बड़ा कारवां है, और इस कारवां में जितने लोग साथ में चलेंगे उतना बड़ा ये बनता जाएगा. Right. So this is where teams like you specifically come into picture. एंड आई एम रियली ग्लैड कि आप लोगों का जो प्लेटफॉर्म है जेड फंड्स, जिस तरीके से वो अपने पार्टनर्स को सपोर्ट करता है, असिस्ट करता है, वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है. बिकॉज आज इस इंडस्ट्री में अगर एक बंदा हर चीज़ करने निकल जाएगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा. सो आप लोग, यू गैस मेक श्योर कि जो आपका पार्टनर है वो सिर्फ अपने बिजनेस को देखे, अपने क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप्स को देखे, एंड द एंटायर बैक एंड इज बीइंग टेकन केयर बाय योर टीम. एंड आई मस्ट से दैट योर टीम इज वेरी प्रॉम्प्ट इन हैंडलिंग clients' issues or partners' issues. So really hats off, and that honestly flows from the top. Now we move on to a segment that we call rapid fire. So are we ready, Chirag? Sure. Rapid fire. 1 लाख की सिप या 1 करोड़ का लमसम? Depends, मार्केट कैसी है. अगर मार्केट नॉर्मल चल रही है, स्टेबल चल रही है, तो आप 1 लाख की सिप कंटिन्यू करते रहिए, और जब जब उसमें थोड़ा सा डिप दिखे तो उस 1 करोड़ में से डालते जाइए छोटा छोटा पैसा. लेकिन अगर मार्केट डाउन हुई है उस समय आप सिप को भी डबल कर दो और अपने जो लमसम को है उसको डालना शुरू करो, और ज़्यादा और एक्स्ट्रा आता है पैसा और पंप इन करो. बाइंग एन अपार्टमेंट और रेंटिंग अ हाउस? एज ग्रुप पे बहुत डिपेंड करेगा ये. अगर आप अपनी अर्ली वर्किंग एज में हो, लाइक से बिटवीन 20 to 35 years of age, focus on renting an apartment and keep that extra money to collect that extra money to buy your real estate. Or upskill yourself. Or upskill yourself as well, yeah. Let's not forget that. That's a great point you made earlier in the podcast. Direct plan versus regular plan. अगर आप सेल्फ सफिशेंट हो कि आप पर्टिकुलरली हर चीज़ को अच्छे से स्टडी कर सकते हो, एंड यू आर एबल टू गिव टाइम टू द मार्केट, चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हो, अगर आप ये देख सकते हो कि कौन सा फंड अच्छा है, कौन सा फंड मैनेजर काम अच्छा कर रहा है, नॉट जस्ट लुकिंग एट कि हिस्टोरिकल रिटर्न्स इसके ऐसे रहे हैं, बिकॉज पास्ट रिटर्न्स आर नो गारंटीज फॉर फ्यूचर रिटर्न्स. सो आप सिर्फ रिटर्न्स देख कर नहीं, अगर आप डीप डाउन ड्वेल्व करके देख सकते हो, and you are able to rebalance your portfolio at regular intervals जब भी requirement आती है, then go for direct. Who's stopping you? And honestly speaking, you're just doing that to save that 0.5 or 1% of the expense ratio. So on the other end, what I would recommend is कि invest that 0.5 or 1%. Think of this as an investment of 0.5 or 1%, and let a fund manager do the job for you, and you focus on upskilling or growing yourself so that आप ज़्यादा पैसा invest कर सको और ज़्यादा पैसा बना सको. Else, leave it to a good advisor who understands your requirement, who guides you through, आपको हैंड होल्ड करके चलता रहे,
पूरा टाइम, और ही मेक्स यू स्टे द कोर्स, एंड इन दैट इंटरवल, इन दैट टेन्योर, वो आपको पूरा टाइम गाइड करता जा रहा है कि आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कैसे करना है, आपको कौन सा फंड में इन्वेस्ट करना है. बिकॉज नॉर्मली जो एक एडवाइज़र है वो फंड मैनेजर पे बैंक करेगा इंस्टेड ऑफ बैंकिंग ऑन अ फंड. अगर मैं अपने केस की बात करूं स्पेसिफिकली, तो मैं रोलिंग रिटर्न्स को देखता हूं इंस्टेड ऑफ हिस्टोरिकल रिटर्न्स. हम रोलिंग रिटर्न्स को देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. साथ ही साथ आई बेट ऑन द रेसर. अगर आप नॉर्मल कार रेस देखते हो तो सारी गाड़ियां सेम होती हैं, बट जीतता कौन है? ड्राइवर जीतता है. सो आई बेट ऑन द ड्राइवर एंड हु इज़ द फंड मैनेजर इन दिस केस. और उसकी रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ वॉट वी डू एंड दिस इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ इट. Great. Now tell me about the last book you read. I read this book, The Intelligent Investor. And this is not for the first time. I've read it for the fifth or sixth time, I suppose. All right. So हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है इस बुक में. एंड ऑब्वियसली ये बहुत पुरानी बुक है, 60-70 साल पुरानी बुक है जो लिखी गई थी. बट आज के सिनेरियो में अगर आप उसके कुछ अच्छे पॉइंट्स को लेकर आज के सिनेरियो में उसको ढाल देते हो, सो हर दिन एक नई सीख मिलती है उस बुक से. That's what's great about great books and great movies, right? Every time you revisit them, there's something new. Okay, now I'll give you a scenario. I am 33 years old. I've just got 1 crore के ESOPs from my company vested. मेरे डीमैट अकाउंट में आ गए. क्या करूं? निकाल के FD में मत लगाना बस. Okay. Right. तो अगर अगेन इसके लिए भी आपके गोल्स और नीड्स को अंडरस्टैंड करके वील हैव टू प्रिपेयर अ पोर्टफोलियो. सो अगर मैं 33 ईयर ओल्ड के हिसाब से अगर बात करता हूँ, सो आप अपने इन्वेस्टमेंट साइकिल को आप डिवाइड करो. कीप अराउंड 60-65% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड देन बैलेंस 30-35% इन सेफर फंड्स विच इज़ डेट और गोल्ड. आप उसके ऊपर फोकस करो. इक्विटी के अंदर भी देन देयर आर सर्टेन बाइफिकेशंस जो आप कर सकते हो. म्यूचुअल फंड्स कर सकते हो क्योंकि आपको ESOPs मिले हैं एंड आप उसमें से चाहो तो कुछ पैसा डायरेक्ट इक्विटी में भी रख सकते हो. सो अगेन डिपेंडिंग ऑन हाउ यू डू योर रिसर्च अबाउट डायरेक्ट स्टॉक्स. So otherwise mutual funds are the best thing. आप उसमें इन्वेस्ट करते चलो. फोकस ऑन इक्विटी, फोकस ऑन अ लॉन्ग टर्म सिनेरियो क्योंकि आपका रिटायरमेंट अभी बहुत दूर है. सो मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, यू हैव द एंटायर प्लेथोरा विथ यू. बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो आप. So no fixed income, only growth asset classes. Yes, right. Focus on growth. How do you first identify a portfolio where you think a PMS or an AIF will add value? And then how do you select a particular PMS scheme or an AIF? So Manish, PMS and AIF जो ये plans हैं, ये जो investments हैं, so these are normally for seasoned investors. You have to have that taste of mutual funds or investing in the market via mutual funds, via direct equity. Right. उसके बाद आप PMS और AIF के ऊपर आते हो. So to generate that extra return or that alpha that one is looking out for. So and someone who has a great risk appetite, because PMS is a heavily concentrated portfolio जो 20, 25, 50 स्टॉक्स के अंदर ही डायरेक्ट ट्रेडिंग करते हैं, डायरेक्ट बाइंग सेलिंग करते हैं आपके अकाउंट के ऊपर. वर्सेस म्यूचुअल फंड्स जो है वो एक बहुत बड़े ग्रुप में इन्वेस्ट कर देते हैं. एक पूल होता है जिसमें मल्टीपल एसेट क्लासेस कवर हो जाती हैं. सो PMS और AIF के स्पेसिफिकली अगर आपको टेस्ट मिल चुका है पहले म्यूचुअल फंड्स का, यू हैव अ डिसेंट कॉर्पस इन्वेस्टेड इन दैट एंड यू वांट टू जनरेट एन एक्स्ट्रा रिटर्न, प्लस you have that extra risk appetite, then we understand that from meeting our client and understand that from our clients' thought process as well, and then we recommend PMS and AIF, because AIF again is a highly risky asset wherein the minimum corpus calls for 1 crore. PMS calls for a corpus of 50 lakhs as a minimum investment. So वो आज normally नहीं investors के पास आता. वो धीरे धीरे करके when they are deep down in the market और उनको पता है कि एक extra amount बन चुका है and then they have this surplus to invest, is when we recommend PMS and AIF. Now, before we wrap up, what's the one personal finance trick that you think will never go wrong or never goes wrong? इस प्रोसेस को, फाइनेंस को बहुत बोरिंग बना दो. जितना बोरिंग होगा उतना ज़्यादा पैसा बनेगा और उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे. तो रोज़ मार्केट ना देखें, रोज़ 4 बिजनेस चैनल्स और 6 बिजनेस न्यूज़पेपर्स और 8 इंस्टाग्राम रील्स देखकर पोर्टफोलियो पे रिएक्ट ना करें. एब्सोल्युटली. उनको तो डेली व्यूज़ चाहिए. आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है. डेली तो बनता रहेगा, धीरे धीरे लॉन्ग टर्म पहले केटर कर लेते हैं. राइट. वन मिस्टेक व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल फाइनेंसेस दैट यू रिग्रेट? मैंने जल्दी शुरू नहीं करा और जल्दी शुरू करना चाहिए था. काश वो दिमाग आ जाता कि जब 17-18 साल के थे तब से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते. एंड मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ मिस्टर वॉरेन बफे. 11 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था उन्होंने तो. राइट. सो ये मैं रिग्रेट करता हूँ कि और जल्दी शुरू कर देते तो मज़ा आता. Thank you, Chirag. Thank you for coming and having this conversation with us. Whether you're managing crores or starting with a 500 rupee SIP, the principles remain same. Patience, discipline, and the right guidance. We hope this episode helped you take your first steps towards meeting your financial goals.
Thank you for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.